مجھے معلوم تھا کہ دونوں سانپ بڑے زہریلے تھے اور کلر کے سانپ تھے۔ مجھے سانپوں کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہو چکا تھا کہ اتنا علم پرانے سے پرانے سپیرے کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ کلر سانپ کا زہر بھی سب سے پہلے آدمی کے گلے کی رگوں کو مفلوج کرتا ہے اور اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہی حال ان تینوں بھارتی فوجیوں کا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گرے میں نے مورچے کے دھانے کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ کمانڈو قاسم سر اوپر کیے ہوئے تھا اور اس نے تینوں بھارتی فوجیوں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اشارہ کیا وہ مورچے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہارون بھی اندر آ گیا۔ میں اور کمانڈو خالد بھی مورچے میں بڑے آرام سے کود کر اندر آ گئے۔ میں نے انہیں سانپوں سے ہوشیار رہنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا۔ میں خود بنکر کے پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرف کوئی فوجی پوسٹ تو نہیں ہے، تاکہ اگر ہو تو اس کے سنتریوں کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ پیچھے ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذرا سا کھول کر دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا صحن تھا جس کے کونے پر ایک بیرک سی بنی ہوئی تھی۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے دونوں سانپ فرش پر نظر آئے۔ وہ دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا اور کھول دیا۔ دونوں سانپ باہر نکل گئے۔ میں نے مجاہد قاسم کو اشارہ کر کے بلایا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ دروازے کو تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھتا رہے۔ اگر کوئی سپاہی ادھر آ رہا ہو تو ہمیں فوراً خبردار کر دے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں تیز قدم اٹھاتا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ طاقتور ٹائم بموں کا ایک تھیلا مجاہد قاسم اور کمانڈو ہارون لائے تھے۔ ایک تھیلا کمانڈو خالد اپنی پشت پر باندھ کر لایا تھا۔ میں نے خالد سے کہا ٹائم بم فوراً باہر نکال لیں۔ کمانڈو ہارون نے بھارتی فوجیوں کی لاشیں دیکھتے ہوئے کہا پستول کے فائر کی آواز ہم نے نہیں سنی تھی، ان کو کیسے ختم کیا؟ کمانڈو خالد بولا انہیں ان سانپوں نے ڈس کر ہلاک کیا ہے جو کرمداد ڈبے میں بند کر کے لایا تھا۔ یہ ایکشن تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے جلدی جلدی ٹائم بموں کے پیک لگانے شروع کر دیے۔ زیادہ بم ہم نے لیزر گن پر اور اس کے بائی پوڈ کے نیچے اور پہلوؤں پر لگائے۔ بائی پوڈ فولادی تھا جس کی وجہ سے بم اس کے ساتھ آسانی سے چپک گئے۔ اچانک دروازے کی دراز کے پاس کھڑے قاسم نے منہ سے ہلکی سی سسکی کی آواز نکال کر ہمیں بتایا کہ باہر سے 2 سپاہی آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ میں نے کمانڈو خالد کو اشارہ کیا۔ وہ دروازے کی دوسری جانب دیوار کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ میں اور کمانڈو ہارون لیزر گن کے دائیں اور بائیں لوہے کی اونچی الماریوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس وقت وہاں صورتحال یہ تھی کہ اگر دونوں سپاہی بنکر میں داخل ہو جاتے تو انہیں لیزر گن اور بائی پوڈ پر لگے ہوئے لمبی سٹکوں والے ٹائم بم صرف نظر آ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ 3 بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بھی درمیان میں اسی طرح پڑی تھیں۔ میں نے کمانڈو خالد اور قاسم کو اشارہ کیا کہ دونوں سپاہی زندہ حالت میں اندر نہ آئیں۔ دروازے کے باہر دونوں سپاہیوں نے کسی بات پر قہقہ لگایا۔ ہم ہوشیار ہو گئے۔ ان کے بھاری جوتوں کی آواز قریب آ گئی تھی۔ پھر باہر سے انہوں نے دروازہ اندر کو دھکیلا اور اندر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک طرف سے مجاہد قاسم نے اور دوسری جانب کمانڈو خالد نے ان پر حملہ کر دیا اور دونوں کی گردنوں کو اپنے بازوؤں کے شکنجے میں لے کر 3-4 اتنے شدید جھٹکے دیے کہ ان کے جسم لٹک گئے۔ یہ جنوبی ہند کے دھان پان سپاہی تھے۔ وہ تو پہلے جھٹکوں میں ہی ختم ہو گئے تھے اور ان کی گردنوں کے منکے ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے کمانڈو ہارون سے کہا تم دروازے کے باہر پوزیشن لے کر لیٹ جاؤ، کوئی اور سنتری بھی آ سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اور خالد نے جلدی جلدی 6-7 باقی بچے ہوئے ٹائم بم ریڈار کے پینل کے نیچے چسپاں کر دیے۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا۔ کمانڈو خالد نے کہا کرمداد ایک بار پھر چیک کر لو۔ میں نے جھک کر تمام چپکے ہوئے بموں کا جائزہ لیا اور باری باری سب کے سیفٹی پن آن کر دیے۔ ان ٹائم بموں نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانے پر ایک ساتھ پھٹنا تھا۔ یہ کلاک بم نہیں تھے جو ٹائم دینے پر پھٹتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں ٹائم بم ہی کہہ کر پکار رہے تھے۔ یہ بم بہت طاقتور بم تھے اور جنگی جہازوں کی موٹی سے موٹی فولادی چادر کو پھاڑ ڈالتے تھے۔ میں نے خالد سے کہا سب ٹھیک ہے، اب یہاں سے نکل چلو۔ میں نے ہلکی سی آواز سے کمانڈو ہارون کو اندر بلا لیا۔ ہمیں الگ الگ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم گن پوسٹ کے بنکر کے شگاف میں سے ایک ساتھ نیچے پہاڑی ڈھلوان پر اتر گئے اور ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ ہم اس سمت سے واپس جا رہے تھے جدھر دشمن کی کوئی مشین گن پوسٹ نہیں تھی۔ یہ ہمارا خیال تھا۔ ہم چاروں کمانڈو بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے پہاڑی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے۔ ریموٹ کنٹرول میں نے خالد سے لے لیا تھا اور اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے ایک سرخ بٹن کو دبانا تھا اور لیزر گن پوسٹ کی پہاڑی چوٹی کو دھماکے سے اڑ جانا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے ذرا ترچھے ہو کر اتر رہے تھے۔ ہمارا لباس کالا تھا، رات کے اندھیرے میں ہم نظر نہیں آتے تھے۔ چونکہ ہم بیٹھ کر اترائی اتر رہے تھے اس لیے اس بات کا
ख्याल रख रहे थे कि कोई पत्थर हमारे नीचे से फिसल कर लुढ़क न जाए। उसकी आवाज से सिक्योरिटी और मशीन गन मोर्चों के संतरी फायर खोल सकते थे। हम गन पोस्ट की पहाड़ी से उतर आए थे। अब दूसरे टीले की ढलवान शुरू हो गई थी, जहां हमारे बाएं जानिब कुछ फासले पर मशीन गन के दोनों मोर्चे थे। मैं देख रहा था कि उतरते वक्त मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून वो एहतियात नहीं कर रहे थे जिसकी अशद जरूरत थी, मगर मैं उन्हें आवाज देकर खबरदार नहीं कर सकता था। चुनाचे वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हम पहाड़ी के दामन में समंदरी साहिल के करीब पहुंचे, जहां से हमें दाएं जानिब मुड़ना था, तो कमांडो हारून किसी पत्थर से फिसल गया और पत्थरों के साथ लुढ़कनियां खाता हुआ नीचे तक चला गया। रात के सन्नाटे में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज पैदा हुई तो बाएं जानिब एक फायर हुआ और साथ ही सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। किसी मोर्चे से रोशनी राउंड फायर किया गया था। हम जहां बैठे थे वहीं जमीन के साथ लग गए। खुदा जाने मशीन गन पोस्टों से किसी ने हमें देखा था या नहीं, मगर रोशनी राउंड के फायर होने के कोई 2 सेकंड बाद हम पर मशीन गन्नों का फायर आना शुरू हो गया। जबरदस्त धमाकों के साथ गोलियां हमारे सरों के ऊपर से निकल रही थीं। कमांडो खालिद ने चीख कर कहा, डबल गो। ये उसका अनाड़ीपन था। ब्रेन गन्नों और मशीन गन्नों की बौछारों में आगे बढ़ना या पीछे हटना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। मैं तो वहीं लेटा रहा, लेकिन मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून उठ खड़े हुए और ढलवान पर अपने दाएं जानिब दौड़ पड़े। दूसरे लम्हे कमांडो खालिद भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं वहीं औंधा लेट गया। गोलियां चीखती चिल्लाती मेरे ऊपर से गुजर रही थीं। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम एक साथ दौड़ रहे थे। अचानक वो गिर पड़े। कमांडो खालिद उनसे 10-15 कदम हट कर भाग रहा था। वो अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरा दिल धक से रह गया। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम में से अभी तक कोई नहीं उठ सका था। यकीनी तौर पर मशीन गन का ब्रस्ट उनके जिस्मों से पार हो गया था, वरना वो उठकर जरूर दौड़ने लगते। गन पोस्ट की सिक्योरिटी बेदार हो गई थी। इस बात का खतरा था कि गन पोस्ट की अकबी बैरक में से गार्ड पोस्ट के अंदर आ जाएगी और हमारा प्लान नाकाम हो जाएगा। मैंने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। अंधेरे में उसके सुर्ख बटन को गौर से देखकर उस पर अपनी उंगली रखकर ऊपर गन पोस्ट के शिगाफ की तरफ देखा। एन उस वक्त समंदर की जानिब से एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आया और अपनी हेडलाइट की रोशनी डालता हुआ मेरे ऊपर से गन पोस्ट की तरफ निकल गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सुर्ख बटन दबा दिया। मुझे शक था कि शायद धमाका ना हो, क्योंकि इससे पहले हमें कमांडो मशकों में भी टाइम बम ही लगाया करते थे और वो दिए गए मुकर्ररा वक्त को पूरा करके अपने आप फट जाते थे। रिमोट कंट्रोल का ये मेरा पहला तजुर्बा था, लेकिन ये अमरीकी रिमोट कंट्रोल बम थे और उनका माइक्रोवेव सिस्टम बेहद मुकम्मल और आला था। जैसे ही मैंने सुर्ख बटन को दबाया, जमीन ऊपर नीचे को एक बार जोर से हिली। फिर एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जैसे 10 आतिशफिशां पहाड़ बैक वक्त फट गए हों। मैंने औंधे होकर अपना चेहरा जमीन के साथ लगा दिया था। मैंने चेहरा उठाकर देखा। पहाड़ी की जिस चोटी पर लेजर गन का बंकर था, वो पहाड़ी आधी से ज्यादा उड़ चुकी थी और वहां से इस तरह आग के शोले और धुआं उठ रहा था जैसे क्रैकटोआ का आतिशफिशां एक बार फिर फट गया हो। छोटे छोटे धमाके शुरू हो गए थे। पहाड़ी के धाने में से बिजली की तरह शोले निकलकर आसमान की तरफ उठते, कभी जर्द शोले, कभी नीले और कभी सुर्ख। जो हेलीकॉप्टर गन पोस्ट की तरफ गरजता हुआ गया था, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। आसमान शोलों से दिन की तरह रोशन हो गया था। मैं उठकर उस तरफ दौड़ा जहां मैंने मुजाहिद कासिम और कमांडो हारून को गिरते देखा था। शोलों की रोशनी में वो दोनों मुझे साफ नजर आ गए। दोनों जमीन पर औंधे पड़े थे। उनके जिस्म का निचला धड़ खून से लिथड़ा हुआ था। मैं करीब जाकर बैठ गया। मैंने हारून और फिर कासिम को सीधा किया। दोनों के पेट फट चुके थे और चेहरों पर मौत का सुकून था। दोनों शहीद हो चुके थे। समंदर में कोई इंडियन नेवी का जंगी जहाज होगा जिसने तेज तेज विसल देने शुरू कर दिए थे। ये खतरे के अलार्म थे। इतने में समंदर ही की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर गरजते हुए नमूदार हुए। उनकी हेडलाइट्स भी रोशन थी और रोशनी गोल दायरों की शक्ल में इधर उधर पड़ रही थी। मैं वहीं अपने शहीद कमांडोज की लाशों के पास ही लेट गया। हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से निकल गए। पहाड़ी की दूसरी जानिब से मशीन गन्नों की फायरिंग के धमाके सुनाई दे रहे थे। मैं वहां नहीं रुक सकता था। मैं दोनों शहीदों की लाशों को न साथ ले जा सकता था, न वहां जमीन खोद कर दफन कर सकता था। मैं उठा और बेतहाशा दौड़ पड़ा। पहाड़ी के ऊपर अभी तक धमाके हो रहे थे और नीले, नारंगी और सफेद शोले भड़क भड़क कर उठते और रात की तारीकी को रोशन कर रहे थे।
खुदा जाने वहाँ गन पोस्ट के नीचे कोई गोला बारूद का जखीरा था जो फट रहा था। मैं पहाड़ी के दामन की तरफ हो गया। मैं उस तरफ से निकलकर शहर के वीरान हिस्से की तरफ जाना चाहता था। अचानक सामने से गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर किसी फौजी ट्रक की अगली रोशनियां ऊपर नीचे होती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। जगह खंडरों वाली थी जिसकी वजह से फौजी ट्रक ऊपर नीचे हो रहा था, मगर ये गड़गड़ाहट किसी ट्रक की नहीं हो सकती थी। मैं भागकर एक तरफ पत्थरों की आड़ में छुप गया। ये एक छोटा टैंक था जिसकी गन की नाली फटते एमुनिशन की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। उसके पीछे दो और टैंक तेज रफ्तारी से बड़े चले आ रहे थे। जब ये तीनों टैंक गुजर गए तो मैं उठकर चलने ही वाला था कि पीछे से एक और टैंक की गड़गड़ाहट बुलंद हुई। मेरे लिए उस तरफ जाना खतरे का बायस बन सकता था। मैं सीधा समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं छोटे से समंदरी टापू के दरख्तों के झुंड में आ गया। यहाँ 3-4 झोंपड़ियां थी जिनके बाहर खस्ता हाल 3-4 आदमी और औरतें खड़ी दहशतजदा चेहरों से दूर ऊपर गन पोस्ट की पहाड़ी को फटते और वहां से निकलते शोलों को देख रहे थे। मैं उनसे जरा परे होकर आगे निकल गया। अब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ और वहां से शेर खान के मकान को कौन सा रास्ता जाता था, क्योंकि मुझे हर हालत में शेर खान के मकान पर पहुंचना था। मैं समंदरी टापू के साथ साथ शुमाल मशरिक की समत का अंदाजा करके चलने लगा। ये खतरा भी था कि यहाँ इंडियन नेवी के कोस्टल गार्ड्स इमरजेंसी की इस हालत में जरूर आ चुके होंगे। उन्होंने मुझसे पूछगिछ की तो मेरी जेब से पिस्तौल और कमांडो चाकू बरामद हो सकता है। मैं उन दोनों हथियारों को अपने से अलग भी नहीं कर सकता था। मैं एक जगह नारियल के दरख्तों के पास रुक गया और सोचने लगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मैं जिंदगी में पहली बार गुजरात सूबे के द्वारका शहर में वारिद हुआ था। इससे पहले इस शहर का सोमनाथ के हवाले से ही नाम सुना था कि यहाँ सोमनाथ का एक बुत हुआ करता था जिसको मुजाहिद इस्लाम महमूद गजनवी ने पाश पाश कर दिया था। दूर से एक स्टीमर की आवाज आने लगी। मैं समंदरी टापू की तरफ गौर से देखने लगा। दूर से कुछ रोशनियां आगे बढ़ रही थीं। उनकी रोशनियों का अक्स टापू के पानी में पड़ रहा था। मैं वहीं बैठ गया। ये कोई फौजी स्टीमर यानी गन बोट ही हो सकती थी, क्योंकि वो बड़ी तेजी से आगे समंदर की जानिब निकल गई थी। लेजर गन पोस्ट की तबाही की इत्तला इस दौरान यकीनी तौर पर इलाके की सारी आर्मी और नेवी को मिल चुकी थी और सारी फौज और फौज की सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। अगरचे मुझे कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम की मौत का सख्त सदमा हुआ था, मगर मुझे इस बात की खुशी भी थी कि हमने अपना टारगेट मार लिया था और हमारा मिशन कामयाब हो गया था। हारून और कासिम ने शहादत पाई थी और शहीद की मौत पर अफसोस नहीं किया करते। जंगी गन बोट के गुजर जाने के बाद मैं उठकर शुमाल मशरिक की तरफ ही चल पड़ा। पहाड़ी मेरे पीछे दरख्तों के झुंडों की ओट में छुप चुकी थी और जहां से मैं गुजर रहा था वहां रात का अंधेरा था। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी टिमटिमाती नजर आ जाती। मैं अब समंदर से हटकर शहर की समत चलने लगा था। मैं एक सड़क पर निकल आया। छोटी सड़क थी और रात के सन्नाटे में वीरान पड़ी थी। सड़क पर आते ही किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैंने कोई परवाह न की और सड़क पर चलता रहा। मेरे पास पिस्तौल भी था और चाकू भी। अगर किसी कुत्ते ने मुझ पर हमला किया तो मैं उसे आसानी से हलाक कर सकता था। सड़क खत्म हो गई। सामने एक मैदान सा था। मैंने गौर से देखा, ये मैदान दलदली था। यहाँ समंदर का पानी चांदनी रातों में भर जाता होगा। मैंने पाँव को दबाया। मेरा पाँव दलदल में धंसने लगा। मैंने पाँव जल्दी से बाहर निकाला और दूसरी तरफ चलने लगा। तबाहशुदा गन पोस्ट की जानिब से धमाकों की आवाजें अब धीमी पड़ गई थीं, मगर उस तरफ का आसमान अब शोलों से सुर्ख हो रहा था। मुझे इतना मालूम था कि शेर खान के मकान के पास जिस तरफ समंदर था उस तरफ रात के वक्त एक मीनारे पर रोशनी हुआ करती थी। शायद ये किसी एडवर्टाइजिंग की रोशनी यानी नियॉन साइंस की रोशनी थी। ये रोशनी जलती बुझती रहती थी। मेरी निगाहें दूर शहर की इक्का दुक्का रोशनियों में से उसी रोशनी को तलाश कर रही थी। मैं द्वारका के साहिली कोहिस्तानी इलाके से निकलकर अब द्वारका शहर के मज़ाफात में दाखिल हो चुका था। ऊंची नीची जगहों पर मकानों में कहीं कहीं रोशनियां हो रही थीं। आखिर मुझे एक जगह वो नियॉन साइंस की जलती बुझती रोशनी नजर आ गई, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक शेर खान के मकान के पास वाली रोशनी थी। मैंने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। कई छोटी छोटी पथरीली और कच्ची सड़कों पर से गुजरता हुआ मैं रात की खामोशी और अंधेरे में एक मंदिर के करीब से गुजरा तो मैंने उसको पहचान लिया। हम शेर खान के मकान से निकलकर उस मंदिर से हटकर अपने टारगेट की रैकी करने गए थे। जब एक तालाब का चबूतरा दिखाई दिया तो मेरी जान में जान आ गई। मैं शेर खान के मकान के पास पहुंच गया था। यहाँ से शेर खान का मकान करीब ही था। नारियल के दरख्तों में से होकर गुजरा तो सामने शेर खान के मकान का दरवाजा था जो बंद था। अंदर कोई रोशनी नहीं हो रही थी। कमांडो खालिद के बारे में मुझे यकीन था कि वो हमसे बहुत पहले और दूसरी तरफ निकला था। वो जरूर बच गया होगा। मैंने खास अंदाज में दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद शेर खान
खान ने दरवाजा खोल दिया और मेरे कंधे के ऊपर से पीछे देखते हुए पूछा, हारून और कासिम भाई कहाँ हैं? मैं बैठक में दाखिल हो गया और उससे सवाल किया, कमांडो खालिद पहुंच गया है? वो बोला, हाँ वो दूसरे कमरे में है। इतने में कमांडो खालिद भी दूसरे कमरे के दरवाजे में से अंदर आ गया। बोला, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। गन पोस्ट के धमाकों ने सारे शहर को हिला कर रख दिया है। कासिम और हारून कहाँ हैं? मैंने कहा, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे? वो तो मेरे आगे निकल गए थे। ये मैंने झूठ बोला था, इसलिए कि मैं अभी उन्हें उन दोनों की शहादत की खबर नहीं सुनाना चाहता था। कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, शेर खान जल्दी से चाय ले आओ। फिर वो मेरे पास ही चटाई पर बैठ गया और बड़े पुरजोश लहजे में बोला, ये हमारी ही नहीं, भारत के और पाकिस्तान के सारे मुसलमानों की, बल्कि सारे आलम इस्लाम की कामयाबी है। पाकिस्तान हमारे लिए नहीं, बल्कि सारे आलम इस्लाम के लिए इस्लाम का कला है। और भारत की ब्राह्मणी हुकूमत ने ये लेजर गन पाकिस्तान को तबाह करने के नापाक इरादे से नस्ब की थी, जिसके हमने परखचे उड़ा दिए हैं। तुमने जरूर देखा होगा कि पहाड़ी सारी की सारी उड़ गई थी और धमाके तो थोड़ी देर पहले तक सुनाई दे रहे थे। मैं जब तुमसे अलग होकर दौड़ा तो मुझे बार बार ख्याल आया कि कहीं तुम रिमोट कंट्रोल दबाने में देर न कर दो, क्योंकि उस वक्त गन पोस्ट की सारी सिक्योरिटी बेदार हो चुकी थी और इस बात का इम्कान था कि सिक्योरिटी वाले हमारे लगाए हुए बमों को नाकारा न कर दें। लेकिन जब खौफनाक धमाकों के साथ जमीन में भूचाल आ गया तो मैं वहीं बैठ गया और पहाड़ी के ऊपर से ज्वालामुखी जैसे शोले निकलते देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। ये बताओ हारून और कासिम तुमसे कहाँ जुदा हुए थे? मैंने कहा, जिस वक्त कासिम का पांव फिसला और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और उसके साथ ही किसी पोस्ट पर से रोशनी राउंड फायर हुआ और साथ ही मशीन गन की बौछारें पड़ने लगी, तो कासिम और हारून को मैंने पहाड़ी की ढलान पर समंदर की तरफ दौड़ते देखा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ हुआ था मैंने गमजदा आवाज के साथ कमांडो खालिद को बयान कर दिया। कमांडो खालिद का सर झुक गया। वो कुछ देर बिल्कुल साकित होकर बैठा रहा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा शरीफ पढ़ो। हमने दुआए फातिहा पढ़कर चेहरों पर हाथ फेरे। शेर खान ऐन उस वक्त चाय की प्यालियां लिए अंदर दाखिल हुआ। हमें उसने चेहरों पर हाथ फेरते देखा तो पूछा, खैर तो है, क्या हुआ? हमने उसे भी बता दिया कि हारून और कासिम इस मार्के में शहीद हो गए हैं। उसने चाय की प्यालियां वहीं चटाई पर रख दी और हाथ उठाकर बोला, वो खुशकिस्मत थे। शहादत का रुतबा किसी खुशनसीब को ही मिलता है। मेरी तरफ से भी दुआए फातिहा पढ़ी जाए। हमने एक बार फिर कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम की अरवाह को सवाब पहुंचाया और खामोशी से चाय पीने लगे। रात बातें करने और कुछ देर सोने में गुजर गई। शेर खान सुबह हमें नाश्ता करा के अपनी दुकान पर चला गया। मैं और कमांडो खालिद बैठक में चटाई पर बैठ गए और वापसी का प्रोग्राम बनाने लगे। अब हमारा द्वारका में कोई काम नहीं था। हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अब हमें भोपाल वापस जाना था। शेर खान को दुकान पर गए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वापस आ गया। वो घबराया हुआ था। आते ही बोला, फौज ने सारे शहर का मुहासरा कर लिया है। जगह जगह फौजी ट्रक आकर खड़े हो गए हैं। घर घर तलाशी शुरू हो गई है। किसी को शहर से बाहर निकलने और शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी, क्योंकि हम द्वारका के रहने वाले नहीं थे। कमांडो खालिद भोपाल का था और बड़ी उम्दा उर्दू बोलता था। मैं पंजाबी था और मेरा उर्दू बोलने का लहजा पंजाबी था। हमसे पूछगिछ हो सकती थी। कमांडो खालिद कहने लगा, ये तो कुदरती बात थी, ऐसा तो होना ही था। भारतीय आर्मी के बहुत बड़े दिफाई पोस्ट को तबाह किया गया है। शेर खान बोला, शहर में जगह जगह भारतीय फौज पर तनकीद हो रही है कि वो द्वारका का दिफा करने के काबिल नहीं है। कश्मीरी कमांडो खुले बंदों आकर उनकी डिफेंस के परखचे उड़ा रहे हैं। लोगों में घबराहट भी है। रात को जब धमाका हुआ तो लोग घरों से बाहर निकल आए थे। हर कोई यही समझ रहा था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मैंने शेर खान से कहा, भाई तुम हमें ये बताओ कि कोई ऐसा खुफिया रास्ता है जिससे हम शहर से बाहर निकल सकें। शेर खान कहने लगा, सारे रास्ते तुम्हारे सामने हैं, कोई ऐसा खुफिया रास्ता नहीं है। कमांडो खालिद ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसी जगह छुपे रहना चाहिए। जब जरा हालात नॉर्मल हो जाएं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। शेर खान कहने लगा, खालिद भाई, मैं शहर की सड़कों पर जिस तरह फौज को गश्त करते देख कर आया हूँ, मुझे नहीं उम्मीद के हालात इतनी जल्दी नॉर्मल होंगे। शहर में तो ऐसा लगता है जैसे मार्शल लॉ लग गया है और फौज का पूरा डिवीजन दाखिल हो गया है। हर चौक में फौज ने पोजीशनें बनाकर मोर्चे संभाल लिए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शेर खान तुम नहीं जानते, जब इस किस्म की कोई वारदात होती है तो फौज ऐसा ही करती है। ये उनकी सिक्योरिटी का तकाजा है। फिर मैंने कमांडो खालिद से कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें आज ही रात के अंधेरे में यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। हम काठियावाड़ की बजाय खलीजे रन कच्छ की तरफ जाएंगे। वो बोला, रन कच्छ में तो फौजी नकलो हरकत ज्यादा होगी, वो तो सारा फौजी इलाका है। सन 65 की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद इंडियन आर्मी ने उसे छावनी बनाया हुआ है। शेर खान ने
ने कहा, मेरा मशवरा है कि आप लोग जिस तरह और जितनी जल्दी हो सके जलगाम वाली खाड़ी की कमीनगाह में जाकर छुप जाएं, यहाँ मुझे ज्यादा खतरा लगता है। कमांडो खालिद कहने लगा, तुम्हारा मशवरा भी दुरुस्त है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए भी हमें रात का अंधेरा होने का इंतजार करना होगा। आखिर यही फैसला हुआ कि जैसे ही रात का अंधेरा हो हम शेर खान के मकान से निकलकर जलगाम की खाड़ी वाली पहाड़ी खुफिया हाइड आउट में चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।